Good evening, students, and once again, welcome in the world of accounting. Partnership accounting is going on, and yesterday I told you about accounting treatment at the time of admission of a partner. Today, I will solve one question in front of you, and what is our objective? That we have to solve this question as early as possible. We will move fastly. So let us begin. I have taken question number 57 from D.K. Goyal. This has been mentioned here and balance sheet is given here. This is the balance sheet of X and Y who share profits in the ratio of 5:3. And who is the new partner? This is Z. Z is coming. Z is the new partner with how much share he is taking? 1/8 share. 1/8 share. What has been asked? Several informations have been given. Z is bringing rupees 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash. Z 20,000 रुपये कैपिटल के लिए ला रहा है और 12,000 गुडविल के लिए ला रहा है. और एक कंडीशन और लिखा है, Z इज अक्वायरिंग हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम X. X से ही केवल ले रहा है, Y अपना शेयर नहीं दे रहा है. Certain information regarding revaluation of assets and liabilities is also given, and what you have to do, prepare journal entries, necessary accounts and new balance sheet. Also calculate new profit sharing ratio. So necessary accounts we have to prepare. So let us begin. First of all, we will prepare partners capital account. Solution. Partners capital account we have to prepare, and 3 column we have to prepare for amount of all the partners. 1, 2 और तीसरा अपने आप बन जाएगा ये. This is for X, this is for Y, this is for Z. X, Y, Z. This is credit side and this is debit side. Particulars. So, from the balance sheet, we will first of all take capital of X and Y. We show on the credit side by balance brought down X 70,000 and Y 31,000. It has been given in the question that Z is bringing rupees 20,000 for capital and 12,000 for goodwill in cash. So the journal entry you put here. Cash account debit to Z's capital account to premium for goodwill. So Z's capital is credit here, therefore in credit we will write by cash. How much capital? 20,000. Goodwill 12,000, total 32,000. Goodwill is 12,000. Right. To buy cash 20,000. This is Z's capital. And the premium for goodwill account debit. This entry is being done
for sharing the amount of goodwill brought by new partner to the partner who is sacrificing. Here condition is given that only X is sacrificing. It is written here that Z acquires his share entirely from X. Therefore goodwill का पैसा कौन लेगा? X to X capital. कितना? पूरा 12,000. So by premium for goodwill 12,000 in X column. What is next that we have to do? See the balance sheet. In the balance sheet there is profit and loss account. If profit loss account balance is given in asset side, it means it is a loss. It represents loss. Had profit loss account been here in the liability side, it would represent profit. But this is loss. So by this loss, partner's capital account is to be debited. Therefore, X capital account debit, Y's capital account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस तरह से हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को जो डेबिट बैलेंस था उसको समाप्त कर दिया. प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना है? 5:3. इसलिए ये 2400 रुपए को हम लोग बांटेंगे एक्स वाई में 5/8, 3/8, 8 3 का 24, 300 मतलब 1500 और 900. और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1500 और 900. ये समाप्त हो गया. बाकी जो असेट्स हैं उनकी हम देखेंगे कि रिवोल्यूशन में इनके लिए क्या करना है. अभी यहाँ देख लें क्रेडिटर्स प्रॉफिट नंबर WCR इज गिवन, रिजर्व इज गिवन. रिजर्व के लिए क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं दिया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं दिया गया है, इसलिए रिजर्व को भी हम लोग बांट देंगे. तो ये क्रेडिट का आइटम है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाई WCR कितना अमाउंट है? 5,800 इंटू 5/8, 3/8. 8 से काटेंगे, 8 7 जा 56. कितना बचेगा? 2 यानी 20 हो गया. तो 8 गुना का 16, 4 8 पंजे का 40 काट दिया. अब 725 गुणे 5 कितना होता है? 7 गुणे का 3500, 25 5 125, 3625. अमाउंट लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखें यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100 ताकि जोड़ने में आसानी हो. तो 7 गुणे के 35, 25 50 125, 3625 हो गया. और इनका कितना होगा? 3 इंटू 725, 7 3 का 2175. 2175 ये हो गया WCR का डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे. लेट अस प्रिपेयर revaluation account. Let us see what information has been given. Provident fund is to be increased by ₹5,000. Provident fund को हमने नहीं बांटा पार्टनर में. ये भी फंड है, ये भी रिजर्व है, but this fund is for employees, not for partners. That's why we will not distribute this fund among partners. Now it is a liability, long term liability. और इसको क्या कह रहा है? इट इज टू बी इंक्रीज बाई ₹5,000. इस लाइबिलिटी को हमें 5,000 से बढ़ाना है. ये 10,000 से 15,000 हो जाएगा. तो रिवैल्यूएशन में इसको हमें दिखाना होगा. लाइबिलिटी बढ़ाना है यानी उसको क्रेडिट करना है, प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करना है. इसलिए टू प्रोविडेंट फंड 5,000 हम यहाँ दिखाएंगे. इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स आर ऑल गुड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड. यहाँ प्रोविजन किया गया है 600 का. लिंक कर रहा है डेटर्स सभी अच्छे हैं, डूबने की कोई संभावना नहीं है. इस प्रोविजन को समाप्त करना है. प्रोविजन क्रेडिट का आइटम, इसको समाप्त करने का मतलब इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा. तो डेबिट करने का मतलब क्या हो गया? प्रोविजन
फॉर सनी डेटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेटर्स कितना है 600, ये हमने लिख दिया। इसके बाद स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। ऑब्सोलीट का मतलब जो खराब हो गया है, किसी काम के नहीं है, कि कोई वैल्यू नहीं है, यानी 3000 से स्टॉक की वैल्यू को हमें घटाना है। अब स्टॉक जो 25,000 दिख रहा है वो 22,000 पे आ जाएगा। ये हम बैलेंस शीट पे शो करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन में इसको हमें नोट करना है। स्टॉक टू स्टॉक, स्टॉक असेट है, इसका नेचर डेबिट है, इसको कम करना है। टू स्टॉक कितना 3000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, क्रेडिटर्स को 1000 और पे करना है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, इसलिए क्रेडिटर्स 1000। और क्या है, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। फिक्स्ड असेट की वैल्यू जब रिवैल्यूएशन हो रहा है उसकी वैल्यू 70,000 ही आ रही है, 80,000 ज्यादा है, 10,000 से कम करना है, इसलिए टू फिक्स्ड असेट 10,000। अब और कोई आइटम नहीं है तो हम इसका प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। 5 3 8 1 9 19,000 रुपये हो गए और यहाँ 600 है, इसका मतलब लॉस हमें कितने का हो रहा है 19,000 का, प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है केवल 600 का। इसका मतलब बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा 18,400। और इस 18,400 को हमें यहाँ पे दिखलाना होगा, क्योंकि ये लॉस है, प्रॉफिट होता तो यहाँ दिखलाते टू रिवैल्यूएशन लॉस। अब हमें इस 18,400 को भी बांटना पड़ेगा। 18,400 को ओल्ड रेशियो में 5/8 और 3/8 हमने बांट दिया। बांट दीजिए, 8 2 जा 16, 2 बचेगा, 8 3 जा 24, 2300 रुपये यहाँ पे आया। मल्टीप्लाई करिए 5 में, मल्टीप्लाई करिए 3 में, तो 2 पंजेगा 10,000, 3 बचेगा 11,500 एक्स के जिम में, और 2 त्याई के 6,900 वाई के जिम में। आप जोड़ के देख लीजिए, 11 6 17 9 5 14 18,400 हो गया। तो रिवैल्यूएशन की भी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। लेट अस सी व्हाट अदर थिंग्स आर हियर। रिवैल्यूएशन की एंट्री हो ही चुकी है और तो कुछ बचा नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन का हो ही गया, प्रोविडेंट फंड का हो ही गया, प्रॉफिट लॉस हमने बांटी दिया, तो एवरीथिंग इज डन। नाउ लेट अस बैलेंस दिस एंड फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द XYZ। तो टोटल करते हैं, दिस इज 20,000, दिस इज 31,000 और 2,175 यानी 33,175, और यहाँ कितना है 70 80 82 85,625। ये 20,000 यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए टू बैलेंस CD आगे ले गए, कितना 20,000 यहाँ है 33,175, यहाँ है 6,900, ऐसे लिख के भी हम कर सकते हैं 33,175 00 यहाँ पे लिखेंगे 5007 9 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। क्या एक यहाँ से लगा 2 2 6 8 5 13 यानी 1 1 2 3 25,375। तो Y की कैपिटल कितनी आ गई 25,375, 85,625, 85,625 यहाँ लिखा, यहाँ वाला बैलेंस यहाँ भी उसी तरह जोड़ लें। 0 तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे तभी आएगा। 0 2 5 5 10 6 16 का 6 लगा 1 1 1 2 1 3 2 5
और एक है नीचे 8 आना है तो 7, 72,625, 72,625. तो दिस इज द न्यू कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स. एंट्रीज हमें अभी और करनी है क्योंकि सारी बोला है सवाल में कि आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, तो कुछ जर्नल एंट्रीज हमने नहीं की है. जैसे आप चाहें तो एक साथ कर लें. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफ, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर, टू फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे आप कर सकते हैं. जितने भी क्रेडिट हुए हैं सबको ले लिया. टू पीएफ, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर्स एंड टू फिक्स्ड असेट्स. इनका अमाउंट जो है हम लिख लेंगे, टोटल करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा. और जर्नल एंट्री क्या करनी है, जो डेबिट पे लिखा है प्रोविजन फॉर डेटर्स, डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये भी एंट्री हमने कर दी. कितने के लिए है, 600 रुपए के लिए. अब ये जो रिवैल्यूएशन लॉस आपने बांटा है उसकी भी एंट्री करिए. क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस, भी एंट्री हमने कर दी. 11,500, 6,900 और टोटल 18,400, ये भी हमने एंट्री कर दी. WCR को हमने बांटा है. रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है. WCR की एंट्री हम लोगों ने नहीं की है. WCR डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल. आप यहाँ पे देख रहे हैं WCR बटा हुआ है यहाँ पे 3625, 2175. टोटल कितना था WCR, 5,800. इस तरह से सारी एंट्री हम कर देंगे. जब हम एक बार अकाउंट बना लेंगे तो आप अकाउंट देख के जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं. और अब हमें बनाना है बैलेंस शीट, द न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ XYZ. अब ये तीनों की बैलेंस शीट है क्योंकि नया पार्टनर भी आ गया है. सो लेट अस प्रिपेयर. देखिए एक क्रम से हम करते जाएंगे. क्रेडिटर्स, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि क्रेडिटर्स 1,000 रुपए और मांगेंगे और इसीलिए क्रेडिटर्स के सामने 1,000 नया रिवॉल्यूशन दिखाया था, यानी 15 की जगह 16,000 हो जाएंगे. प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में कितना बढ़ा था, 5,000, यानी ये 15,000 हो जाएगा. बैलेंस शीट में WCR बढ़ चुका है इसलिए दोबारा नहीं शो करेंगे. कैपिटल दिखा देते हैं XYZ. एक्स की कैपिटल कितनी है, जो बैलेंस आया है 72,625, दिखा दीजिए. 25,375 वाई की है, दिखा दीजिए. 20,000 जेड की है, दिखा दीजिए. ये काम भी हो गया. अब हम असेट साइड में आते हैं. कैश को हम लिख के छोड़ देंगे या आप अभी भी कर सकते हैं. 5,000 रुपये कैश था और नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया, 32,000. 20,000 अपनी कैपिटल का, 12,000 गुडविल का जो कि फॉर्म में है. इसका मतलब है कि 20, 12, 32,000 रुपया और कैश आ गया फॉर्म में. 5,000 में 32,000 जुड़ जाएगा, 37,000 का नया कैश बैलेंस होगा. आगे बढ़े. सन्ड्री डेटर्स, कोई प्रोविजन नहीं, पूरा 20,000 रुपए हम यहाँ पे दिखलाएंगे. प्रोविजन समाप्त हो गया. 19,400 नहीं दिखलाएंगे, 20,000 दिखलाएंगे. स्टॉक, स्टॉक में 3,000 की बढ़ोतरी हो गई थी
3 ईयर घटा देंगे 22,000 रुपए। फिक्स्ड असेट्स में कितना घट गया था, 70,000 वैल्यूएशन हो गए थे, यानी 10,000 घट गया था, इसलिए 80 से हम कहाँ ले आएंगे 70,000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो लॉस था वो पार्टनर्स में बांटा जा चुका है, इसलिए दोबारा एंट्री अब यहाँ पे नहीं शो किया जाएगा। I don't think anything is left, so let us total this balance sheet. What is the total? 30, 20, 50, 20, 70, 70, 1, 40, 1, 47, 1, 49, सॉरी कितना हुआ 37,000, 20,000, ठीक है, 1,49,000. What is the balance sheet to be given? 1,49,000 is the right answer. Then let us move 5, 5, 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 1, 2, 3, 4, 10 के 0, यहाँ से लगा 1, 1, 6, 7, 3, 10 के 0, यहाँ से लगा 1, 7, 5, 12, 2, 14, 5, 19 का 9, यहाँ से लगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 7, 10, 12, 2, 14, 1,49,000. So balance sheet is tallied. It means your question is all correct. तो कितनी चीजें हमने की, हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, हमने जर्नल एंट्री सारी कर दी, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर के यहाँ से मिलना ही मिलना है। हाँ, एक चीज बचा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहां पे ये काम बहुत आसान है। एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू एक्स का पहला शेयर कितना था 5:3 यानी 5/8। इसमें से ये कितना दे रहे हैं जेड को, जेड इज कमिंग 1/8, 1/8 हटा दिया, कितना हुआ 4/8। वाई शेयर में कोई चेंज नहीं है, वाई न्यू शेयर सेम होगा, कितना 3/8, दिस इज 3/8 एंड जेड इज कमिंग फॉर 1/8, therefore NPSR is equal to 4:3:1. So everything has been solved. I am not seeing the time, but the question has been solved completely. Although this type of question does not come in board examination, means what I wanted to say कि किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं कहा जाएगा कि आपको ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाने हैं और जर्नल एंट्री भी करनी है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि आपके सामने मैं सारी चीजें दिखला सकूं। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, बैलेंस शीट भी बनाया, जर्नल एंट्री भी की और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखला दिया। सो आप भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आप अभ्यास करिए, पहले चीज़ों को सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, फिर धीरे 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 आप घड़ी देख करके जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आप स्पीड गेन कर सके और एग्जामिनेशन में आप समय रहते सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू स्कोर 100 out of 100. One of my students last year scored 100 out of 100 in accountancy, and many of them got 95 above marks, and some of them got 90 plus marks also. So you can also do it, practice it. It is quite possible. Thank you.